Okay, so welcome to the second lecture of matrices. Matrices. All right. And in the previous class, we have studied the representation of a matrix, कि how does a matrix look like. Then after that, हमने order पढ़ा था उसका, एक element को हम कैसे represent करते हैं ये पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि अगर उस element को we have to find in a matrix, तो how can we find it? तो I think those things were clear to you. Was there any doubt? No, Didi. Okay. Chalo, so let us continue from where we left. We had studied 5 types of matrices. Now let us start with the 6th type of matrix, and that is known as square matrix. हम टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उनमें हमने बहुत सारी टाइप्स देखी थी मैट्रिसेस की. जैसे हमने नल मैट्रिक्स देखी थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये सारी देखी थी. Now we'll study today, from today we'll study square matrix. Now what is meant by square matrix? So first of all, as the name suggests, एक स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं, पर एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होती हैं, राइट? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दीज आर इक्वल टू दीज, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं. मोरओवर ये दोनों जो है, ये एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो भी बराबर हैं. So in that case, in the case of a square, all the 4 sides are बराबर, they are equal. So square matrix के केस में ये होता है कि जो रोज होती हैं in a matrix, they are equal to the number of columns present in the matrix, which means m is equals to n. m और n की वैल्यू एक होती है equal, right? So in the case of a square matrix, the value of m and n are equal. ठीक है, तो अगर मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, फॉर एग्जाम्पल, सो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं ऐसे बनाऊंगी कि जो m है वो n के बराबर हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चाहिए मुझे. अगर मैं बना रही हूँ A11, A12, A21, A22, so what is the order of this matrix? 2 into 2. 2 into 2. So here I can see that the value of m and the value of n, because we know that order is nothing but m cross n. So here m is also 2, n is also 2. So here we can say कि this particular matrix is a square matrix, क्योंकि यहाँ पे जो rows हैं और जो column हैं, their number are equal. Okay, talking about a matrix B. Talking about a matrix B, so if we have A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now let us suppose ऐसा एक क्वेश्चन आया है पेपर में या फिर एग्जाम में कि देयर इज अ स्टूडेंट राम, क्या नाम है स्टूडेंट का? राम. ओके, हाँ, तो चेक कर रही थी तो सुन रहे हो कि नहीं. तो देयर इज अ स्टूडेंट राम एंड ही क्लेम्स दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इज ही राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, इज ही राइट? इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स? Yes, Didi. Yes. Why? 3 into Because 3. its order is 3 cross 3. Great. So what is the condition of being a square matrix? The condition of being a square matrix is that the number of rows and columns must be equal. So if the number of rows and columns are equal, so they will be in either in the case of 1 cross 1, but in that case only one element is present, and we are talking about the arrangement of several elements, so we generally don't regard one into one as the square matrix. But हाँ, मतलब 1 into 1 वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसे मना नहीं कर सकते होने से. Talking about 2 into 2, it is a square matrix. 3 into 3, 4 into 4, any number. So any matrix whose order is something like n cross n or m cross m, because हमें पता है कि m और n बराबर ही हैं, तो हम instead of writing m and n, we can write them either n square or m, like we can write it like this.
So किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इस तरीके से होता है, इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट, ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दैट इज अ डायगोनल, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स. अभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले डायगोनल, वी नो द व्हाट इज अ डायगोनल. अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर, सो दिस वुड बी अ डायगोनल एंड दिस वुड बी अ डायगोनल, राइट? ये दोनों डायगोनल होंगे ना? यस दीदी. सो अब मैं किन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगी इन द केस ऑफ मैट्रिक्स? मैं किन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगी? सो लेट अस सी दैट. हमने कल पढ़ा था, we saw yesterday that if we have to represent an element, so it will be aij. हमने देखा था कि इस तरीके से we represent an element. Now, और हमने एक और चीज डिफाइन करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द जो हमने जीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी, इन दैट वी सॉ अ कंडीशन दैट इफ this is a representation, general representation of the elements of a matrix. So if it is zero for all the values of I and j, किन्हीं भी वैल्यूज ऑफ आई एन जे के लिए, इफ दिस ए आई जे इज जीरो, देन व्हाट विल हैपन, दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, 50 होंगे, कितने भी होंगे, वो सारे के सारे जीरो होंगे. सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जीरो, तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. तो हमने इस वाले ए आई जे में कंडीशन लगा दी थी टू डिफाइन पूरी मैट्रिक्स. सिमिलरली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं. ए आई जे तो एलिमेंट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है, और यहाँ पे क्या होगा, जिन भी एलिमेंट्स में आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, इस आई और इस जे की वैल्यू बराबर होती है, विच मीन्स, व्हाट डज इट मीन? तुम बताओ क्या मतलब होगा ऐसा आई और जे बराबर? मतलब वो जिस रो में है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर प्रेजेंट इन सेकेंड रो, तो दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द सेकेंड कॉलम ऑल्सो. सिमिलरली अगर वो थर्ड रो में प्रेजेंट है, तो उन्हें थर्ड कॉलम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, राइट? यस दीदी. तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये कौन सा, जिस एग्जाम्पल दो, हाउ कैन बी, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ए आई जे, आई इज इक्वल टू जे का? इनमें से बताओ कौन से ऐसे हैं जिसमें आई और जे बराबर हैं इस वाली मैट्रिक्स में? A11, A11 और A33, A33 and A22. A22. Correct. So what are you seeing over here? That I and J are equal. So you are saying that ये वाले elements जो हैं, इसमें ये जो condition है, that is satisfying. So अब देखो इस वाली मैट्रिक्स में, देखो ये कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? A11 ये है, A22 ये है, A33 ये है. Similarly, if I go on checking, अगर मैं एक बड़ी मैट्रिक्स बनाती 4 into 4 की, so A44 मुझे यहाँ मिलता somewhere here. अगर मैं बनाती तो A55 मुझे यहाँ मिलता. So what are we seeing over here? Can I change the color of the pen? Yeah. अब मैं क्या देख रही हूँ कि जो ये एलिमेंट्स हैं जिनमें I and J बराबर हैं, उसमें we can see that these elements are present in this particular line. ये अगर मैं इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? क्या है ये? डायगोनल, एग्जैक्टली. तो इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करने पर, क्योंकि मुझे एक डायगोनल मिल रहा है, दैट इज व्हाई व्हाट आई एम कॉलिंग दीज एलिमेंट्स एज डायगोनल एलिमेंट्स. एंड वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट both of the diagonals are equal, like they are important, no doubt. Like in a square, both of the diagonal play important role, but in a matrix, if we are talking, ये वाला जो diagonal है, ये वाला जो मैंने blue से highlight किया है, that is of prime importance. इस वाले diagonal से हमें कोई लेना देना नहीं है, because यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे हमें कुछ अपना काम का नहीं मिल रहा है. We only have to remember that this diagonal जो ऊपर से नीचे वाला है, या फिर ये वाला जो है, इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस. यही याद रखना कि ये वाला जो डायगोनल है, इट इज ऑफ आवर इम्पोर्टेंस, बिकॉज यहाँ पे हमें डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं.
इसी लाइन में मिलेंगे, कितने ही बड़ा कर लो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, हियर ओनली वी विल फाइंड ऑल द elements which will be known as diagonal elements. So diagonal elements are those elements in which the value of I and j are equal to each other. ठीक है, और they are present on the main diagonal, जो हमारा diagonal जो काम का है, and in that we have a11, a22, a33 and so on. Right, so इन elements को diagonal elements बोलते हैं. So is there any doubt till here in the square matrix or in the diagonal elements? No, Didi. Okay, great. So let us move ahead. There is no space in this particular. Now, what happens that in this case, now what happens in the square matrix? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ रहे थे. तो मैट्रिक्स के टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स थे हमारे पास? रो और हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल, और उधर कॉलम था, नल मैट्रिक्स था. लास्टली हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं. मतलब ये वाले जो पर्टिकुलर मैट्रिसेस हैं जो भी मैं बताऊंगी 3, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. बस स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लेट अस सी दैट. टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स. Okay, so let us see over here that कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके. सबसे पहले होता है द फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. or rather instead of studying it because it may confuse you. Okay, so let us do one thing. इसको तो हम करते हैं erase. Instead of studying what is a triangular matrix, let us jump directly to the upper triangular and the lower triangular matrix. Okay, so let us study upper triangular matrix. और हम इन्हें पढ़ेंगे साइड बाय साइड, मतलब 2 हैं. So let us study them side by side only, so it will be better to understand. Lower triangular matrix. हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे जो नेम है उससे उसका मतलब वही निकलेगा. देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सबसे जरूरी बात ये है कि इट इज अ this particular type of matrix, upper triangular matrix and the lower triangular matrix, they both are types of square matrix. इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों है स्क्वायर मैट्रिक्स ही. ठीक है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं, पर उसके जस्ट टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने राम भगवान जी का नाम सुना है? यस दीदी, अच्छे से जानता हूँ. हाँ, राम भगवान जी को अच्छी तरह जानते हो. और उनका नाम सुना है नरसिंह भगवान जी का? यस दीदी. है ना. अब ये दोनों जो राम जी हैं और जो नरसिंह भगवान जी हैं, वो कौन है? वो दोनों एक ही हैं. मतलब वी कैन से कि वो दोनों एक ही मतलब एक ही हैं, बट दे हैव जस्ट चेंज द फॉर्म्स. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर राम जी और नरसिंह जी एक ही हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग अलग हैं, वो एक ही हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ये दोनों हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही, पर क्योंकि इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इस वजह से हमने इनको डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है. इसमें एक कंडीशन ये होती है कि aij is equals to 0 if this happens. ठीक है, so aij is equals to 0 if I is greater than j. अभी हम देख के आए जस्ट इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ये देख के आए कि जो I है सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स में हम देख के आए कि जो I है वो j के बराबर होगा अगर, तो उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन I शुड बी ग्रेटर देन j.
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं 3 इज ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन में देखूं, या फिर 2 इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन में देखूं, या 3 इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन में देखूं, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसको, इस कंडीशन को। यस दीदी। तो अब अगर these conditions are being satisfied in this case, जो a i j है, फॉर एग्जाम्पल a i is 3, फॉर एग्जाम्पल i is 3, जो मेरी वैल्यूज है वही रख रही हूँ यहाँ पे, i j यहाँ पे ये है i j। if this happens, if these are the conditions, then these 3 elements would be 0। ठीक है, अगर ये तीनों ऐसे हैं तो फिर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हम इनको बना के देखते हैं एक बार कैसे, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, लेट अस सी दैट। तो हम एक we'll see just that particular मैट्रिक्स जो हमने कल स्टार्ट करी थी, है ना, इस तरीके से हमने एक जनरलाइज मैट्रिक्स बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर, A21 A22, है ना, ऐसे चल रही थी ये, A31 एंड सो ऑन टिल AM1, उसके बाद इट वाज गोइंग ऑन AM2, और ये भी चल रहा था AM3 and so on, it was going on, and the final element that came was AMN। ठीक है, तो इसके हमने ऑर्डर लिख दिया था M क्रॉस N। नाउ लुक क्या बोल रहा है ये, कि अगर I की वैल्यू J से ज्यादा है तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यू कैन सी कि ये वाले एलिमेंट्स को हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे है ये, A32 किस रो और किस कॉलम में है A32 एलिमेंट? थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकती हूँ, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32। टॉकिंग अबाउट A21, वेयर इज इट? A21, हियर इज इट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड दिस A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि ये हमारी डायगोनल थी। अभी अभी हम पढ़ के आए कि व्हाट इज अ डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे n वाला आ गया, हियर कैन नॉट बी 4। सो आई वाज सेइंग कि ये हमें पता है, अभी अभी हम देख के आए हैं कि ये वाली जो होती है ये हमारी डायगोनल है, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी डायगोनल होती है। तो इस वाले से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस कंक्लूजन कि हम जो भी वैल्यू लिखेंगे ना, ये वाले हम किसी भी कंडीशन में लगा लो, 4 इज ग्रेटर देन 2, कुछ भी कंडीशन लगा लो, वॉट एवर एलिमेंट्स यू विल फाइंड हियर। तो ये जो डायगोनल है, इसके नीचे वाले जो पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला है, इसके नीचे वाला, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि इन सब के सब एलिमेंट्स में इस डायगोनल से नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, बिकॉज दे विल बी सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सारे यू कैन क्रॉस चेक इट विद एनी वैल्यू, हर एक एलिमेंट यहाँ पे 0 होगा नीचे वाले केस में। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, वापस लिख सकते हैं एज ये 1 1 1 1 2 2, ये जो पर्टिकुलर वो चल रही है डायगोनल, उसको तो एज इट इज लिखेंगे। और इसके अलावा जो इधर है ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो कम इंटैक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बात ये है कि जो यहाँ वाले एलिमेंट्स हैं नीचे, इस डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी हो जाएंगे 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि अगर ये हम बना रहे मैट्रिक्स, ये डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे 0 होंगे और ऊपर वाले जो मर्जी हो सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू बी 0 और नॉट टू बी 0, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि एक भी 0 नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, पर नीचे वाले तो कंपल्सरीली 0 ही होंगे। तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हमें मिलती हैं एक्सेप्ट 0, दे आर अवेलेबल इन द अपर पार्ट। मतलब हमें नोन वैल्यूज या फिर जिनसे हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो वैल्यूज ऊपर मिलती हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में। अब तुम देखो, अगर इस वाले में देखो तुम, तो अगर लेट मी चेंज द पेन, इफ यू सी देयर आर 2 ट्रायंगल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है डायगोनल के ऊपर वाला, इज इट विजिबल, दिस वन? यस दीदी। एंड वन इज दिस वन। कोई सी भी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 2 ट्रायंगल्स।
क्योंकि ऊपर भी हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज्ड है, नीचे भी अरेंज्ड है, दैट इज व्हाई इट इज डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल यू कैन कॉल हियर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट विल बी अ स्क्वायर ओनली, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स वुड बी अ स्क्वायर ओनली, so this diagonal is cutting this square into two triangles. Now if the values जो ऊपर वाले ट्रायंगल हमें दे रहा है वो जीरो नहीं है, तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अब तुम जैसे गेस कर ही पाओगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। बताओ कंडीशन, बता मुझे, यहाँ पे क्या आएगा? J is bigger than I. करेक्ट, J इज बिगर देन I। तो यहाँ पे तुम ऐसे देख सकते हो यहाँ पे कैसे देख सकते हो तुम कि फॉर एग्जाम्पल एक इसका तो रेसिप्रोकल, हाँ इसका उल्टा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वाले जब राम जी वाला जो अवतार था उसमें आई वॉज ग्रेटर देन जे, मतलब अगर ये राम जी हैं तो राम जी जो हैं वो लक्ष्मण जी से बड़े थे। पर इन द केस ऑफ दिस वन, यहाँ पे क्या हुआ, जब कृष्ण जी वाला अवतार था तो उसमें जो बलराम जी हैं, जो मतलब आफ्टर ऑल लक्ष्मण जी ही हैं, तो वो जो बलराम जी हैं वो बड़े भाई हो गए, और जो राम जी आफ्टर इस वाले इनकारनेशन में कृष्ण जी हैं वो छोटे रह गए। तो इसमें राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे, और इस वाले में बलराम जी बड़े हो गए और कृष्णा छोटे रह गए। ठीक है, तो हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल वो उसका उल्टा है। तो अगर तुम किसी किसी चीज से एग्जाम्पल से लिंक करके चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी वो बात, वो एग्जाम्पल रह जाएगा और उसके साथ साथ वो बात भी रह जाएगी। तो ट्राई करा करो कि एग्जाम्पल्स की तरह उनको समझो। Okay, so I was talking about this. Now again, you can just assume any value here. For example, let us take these only. 3 is greater than 2, 2 is greater than 1, 3 is greater than 1. यही वाली कंडीशन हमने ले ली, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इन वाले केस में 3, now, sorry, I was about to write it wrong. अब देखो, अब क्या होगी ये वैल्यूज। अब बताओ एलिमेंट के नाम बताओ, यहाँ से देख के बताओ कि व्हाट विल बी these एलिमेंट्स। कैसे लिखूंगी मैं इनको? आई और जे क्या क्या है? थर्ड कॉलम सेकंड रो। थर्ड कॉलम सेकंड रो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ए 2 3 करेक्ट, गुड। A2 3 लिखूंगी, A है ना? यहाँ पे A1 2 A12, यहाँ पे A1 3 A13, करेक्ट। तो A23, A12, A13, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये जीरो होंगी। अब हम देखते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू कहाँ आ रही है, तो हम क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो भी देखेंगे अभी 1 मिनट में। तो लेट अस जस्ट गो ऑन विद इट, जैसे हमने पहले बनाई थी, है ना? और अब हम देखते हैं, मतलब ये इस तरीके से चलती रहेंगी। और मोर ओवर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली जो रोज हैं वो दे विल बी इक्वल टू द कॉलम्स। नाउ लुक, A23, so it will be present where? second to third column. Second row, third column. Good. Second row, third column, so it will be here. Similarly, 1 2 as is visible, it is here. 1 3, it will be here, and it will go on till 1n. So now here in this case, what are we able to see? That this diagonal, for example, if I'm writing here 1 2 3 as well, 1 3 3, तो ये diagonal तो है intact, है ना? ये वाली diagonal is present, ये वाली। But what is it doing? ये again इस particular matrix को, जो एक square है, इसको दो triangles में divide करेगी, and all the values, ये अगर diagonal है मेरे पास, and all the values above this diagonal will be zero, सारे के सारे without discrimination, they will all be zero। ऊपर वाले और नीचे वाले they can hold any value. It is not compulsory for them to hold a non-zero value or a zero value. They can hold anything. तो इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं? What is visible to us? That here the
lower triangular matrix, like lower triangle is giving us substantial values, कुछ values हमें वहां से मिल रही हैं पर ऊपर से हमें सिर्फ 0 मिल रहा है, तो इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि aij will be equal to 0 if j is greater than I. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a11 a22 a33, this particular diagonal will be intact, there will be no problem. Moreover ये जो नीचे वाले इसके एलिमेंट्स हैं, जो भी नीचे में हैं, हमें अभी पता नहीं है क्योंकि we don't have the matrix right now, तो जो भी एलिमेंट्स हैं they will hold some value without any problem, but ऊपर वाले जो हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, जितने भी जा रहे हैं लास्ट तक वो सब 0 होंगे, डायगोनल से ऊपर वाले सारे 0 होंगे, नीचे वाले कुछ वैल्यूज होगी, और इस वाले में ऊपर वाले में कुछ वैल्यूज होगी और नीचे वाले 0 होंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारे, ये दो टाइप्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. Is this thing clear to you or is there any doubt? Yes, Didi, it is clear. Okay, great. तो आई होप कि तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो, लिख रहे हो इसको. Yes, Didi. Good. Okay, so let us can I मतलब take another whiteboard? Yes, Didi. Okay. We started the class at 6-9, no? Okay, fine. Now अभी हमने पढ़ी दो तरीके की मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ एक और टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का एंड दैट इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स से एक बात तो तुम्हें लग ही रही होगी, तुम गेस कर ही रहे होगे, that diagonal element this particular diagonal matrix will have something to do with diagonal elements. क्या करेगा ये diagonal elements का, तो देखते हैं. इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें ये कंडीशन होती है कि aij will be 0, those elements will be 0 अगर I is not equal to j. अब इसमें क्या बोला कि अगर I is not equal to j तो वो वाले एलिमेंट्स जिस वाले केस में ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही वो सारे एलिमेंट 0 होंगे. अभी तो खतरनाक बात हो गई. क्यों? ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसमें I और J बराबर होते हैं? In which elements this condition is applied? I and J are बराबर. अभी हम पढ़ के आए हैं वो एलिमेंट्स, Diagonal basis. डायगोनल एलिमेंट्स. अब इसमें ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सारे 0 होंगे. ये समझ में आ रही है यहाँ से बात? Yes, Didi. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग अ मैट्रिक्स A11, A12, A13 and so on till A1n, A22, oh sorry, A21, A21, A22, A23 and so on till A2n, right? And after that we are going till AM1 and so on, AM2, and it will go on till AMN, for example, right? Now what it is saying that these elements, like the elements which are lying on this particular this diagonal, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ, A33 हमारा आएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल. तो ये वाले जो एलिमेंट्स है जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायगोनल पे लाई करेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, सो सॉरी. ये वाले जो डायगोनल्स हैं जो इस पर्टिकुलर इस पे जो एलिमेंट्स है जो डायगोनल पे लाई करेंगे वो होंगे कुछ, उनकी कुछ वैल्यू होगी. अदरवाइज ऊपर वाले और नीचे वाले सारी वैल्यूज जो भी हैं they all will be 0 except the diagonal elements. So diagonal elements के अलावा, so how can we make it? 1 will be there, 2 will be there, 3 will be there, they will have some values, and here also m n
जो कि इस केस में हो जाएगा mm, कैसे भी लिख दो उसको, तो मैं ऐसे mn लिख देती हूँ. बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि अगर वो डायगोनल पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब m विल बी बराबर टू n, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डायगोनल. जो एलिमेंट्स इस डायगोनल पे प्रेजेंट है, मतलब जिनकी वेयर i एंड j आर इक्वल, एक्सेप्ट दीज ऑल द अदर एलिमेंट्स. कितने भी एलिमेंट्स हो. अभी हम क्या देख के आए थे अपर वाले उसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स व्हिच वर लोअर देन द diagonal, they were zero. In the lower triangular matrix, all the elements which were upper, like on the upside of that diagonal, they were all equal to zero. इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ऊपर वाले नीचे वाले सारे जीरो होंगे, बस उस डायगोनल पे जो प्रेजेंट है वो दे कैन बी नॉन जीरो. इसमें भी ऐसे कुछ नहीं है, इसमें भी एक आध जीरो हो सकता है, दैट इज नॉट मतलब बिग डील. बट इस वाले में वैल्यूज हमें इस डायगोनल से ही मिलेंगी और इसी को बोलते हैं हम diagonal matrix. So it means that it will look something like this: A11 0 0. अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाती हूँ फॉर एग्जांपल, तो A11 0 0, A11 0, जिसे हम वो वाले लिख लें जो हमारे काम के हैं. They will be your diagonal elements. Except these diagonal elements, all the other 6 elements will be 0. क्योंकि ये इस diagonal से या तो ऊपर है या फिर नीचे है. ठीक है, तो एक तरीके से diagonal elements एक वो है, क्या बोल सकते हैं, मतलब it contains both the lower as well as the upper triangular matrices, so it is a combination of both. So is this clear to you, diagonal matrix? Yes, Didi. Okay, good. So now let us do two more things today, क्योंकि हमारी क्लास ऑलरेडी थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, तो let us do two more things today. And so now till now we read the representation of matrix, the order of a matrix, how do we represent a denote a element, how can we find it in the matrix. Along with that we saw different types of matrices, and today we saw the types of square matrices as well. Now ये वाली चीजें तो थी एक तरीके से मैट्रिसेस को जानने के लिए कि भाई मैट्रिसेस क्या होती हैं. ठीक है, तो मैट्रिसेस को जानने के लिए थी कि व्हाट आर मैट्रिसेस ऑल अबाउट. now we'll come to a like main thing, main, कि भाई हम इन मैट्रिसेस से कर क्या सकते हैं. What can we do with these matrices? What type of functions we can do with these matrices? तो matrices में सारे functions हो सकते हैं. We can add two matrices, we can subtract two matrices, we can multiply a number inside a matrix, we can multiply two matrices, है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं. तो algebra of matrices deals with all these operations, be it addition, subtraction, etc. Okay, so let us talk about addition, subtraction today, or let us talk about only the addition. It will, I think, be enough. अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में. Addition of matrices. अब tell me one thing, कि क्या मैं मीटर में, मीटर जो होता है फॉर एग्जाम्पल 5 meters इज देयर दैट लेंथ, 5 meters में 6 किलोग्राम ऐड कर सकती हूँ. Yes, Didi. मेरा क्वेश्चन क्या था? No, no. नहीं कर सकते दीदी. क्या क्वेश्चन क्या था मेरा? मीटर को किलोग्राम में ऐड कर सकते हैं. हाँ फिर ठीक है, नहीं कर सकते. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो दीदी मीटर में, किलोग्राम में. तो उनकी वो अलग अलग है, यूनिट्स अलग अलग है, तो जिससे हम उनको नहीं कर सकते. मतलब वो एक साथ, मतलब वो उनका फॉर्म सेम नहीं है, उनका जो यूनिट है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, तो हम उनको साथ में ऐड नहीं कर सकते. क्या हम मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं? यस दीदी. मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं. ओके, सो मैट्रिसेस में भी यही होता है. एडिशन के लिए
अभी हम सब्ट्रैक्शन कल पढ़ेंगे। एडिशन के लिए व्हाट इज द प्राइम थिंग विच इज लाइक व्हाट इज नीडेड, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो दो मैट्रिसेस को हम ऐड करने वाले हैं, जो इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करने वाले हैं, उन दो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू ऐड A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स टुगेदर, सो इस इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो होना चाहिए सेम, एग्जैक्टली सेम। इफ इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ A has a order of 3 cross 1, so in order to add B matrix in this A matrix, what should be the order of this matrix B? 3 into 1. 3 into 1। कोई और ऑर्डर की मैट्रिक्स काम नहीं करेगी, बिकॉज हम एडिशन तभी कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज 3 क्रॉस 1, 3 रोज एक कॉलम, तो लेट्स जस्ट टेक 2 1 0 as matrix A and 3 4 0 as matrix B। ले लिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ और आई विल गेट, व्हाट विल आई गेट बताओ? 5 5 0. 5 5 0। और ये किस मतलब किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स. हाँ, कॉलम मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है? ये 3 into 1. 3 into 1 की। ओके कूल। सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हियर कि दो, अगर इन दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस को जिनको हमें ऐड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर शुड बी सेम 1 2, whatever we'll get after adding those two matrices, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी द सेम एज दोस टू मैट्रिसेस। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 वाली दो मैट्रिसेस को ऐड करने पर हमें 3 क्रॉस 1 की ही थर्ड मैट्रिक्स मिली है, और हमें सिंपली इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना था। दैट इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस must be the same। जो भी पहली का मैट्रिक्स है, सॉरी ऑर्डर है, वही दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो वी विल ऑब्टेन अ मैट्रिक्स आफ्टर द एडिशन। एडिशन तो हम नॉर्मली कर लेंगे, जैसे आप इन्हें बता दिया कि हाउ वी एडेड, लाइक वी कैन ऐड दीज टू एलिमेंट्स। इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, पहला एलिमेंट लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, दूसरा लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, थर्ड लिख दिया, एंड ऑर्डर विल बी द सेम। ठीक है, तो ये एडिशन वाली बात समझ में आ गई? यस दीदी, सब्ट्रैक्शन भी तो ऐसे ही होगा फिर। एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बिल्कुल 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 सेम है। उसमें भी यही होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और वो से बहुत मतलब वो डिफरेंट है, उसके लिए टेक्निक है। मतलब अगर मुझे दो मैट्रिसेस को ऐड मल्टीप्लाई करना है तो इट हैज अ डिफरेंट टेक्निक, क्योंकि हम उसमें ये बोलते हैं कि ऑर्डर शुडंट बी सेम। मतलब ऐसे ऑर्डर का अगर सेम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी मतलब उसमें चल सकता है, मल्टीप्लिकेशन में चल सकता है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चल सकता। मोरओवर सब्ट्रैक्शन हम कल करेंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी है, मतलब इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक चीज भी है। So अब ये देखते हैं कि what are the properties of this addition of matrices. So first of all, do you know what is commutative? Commutative. Have you like heard this term before? यस दीदी। क्या होता है commutative? मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है commutative की? ओके मैं बताती हूँ। A प्लस B करें, A में B को ऐड करें, या फिर B में A को ऐड करें, A plus B and B plus A both will be equal. This is meant by commutative. राम प्लस कृष्ण करें या कृष्ण प्लस राम करें, क्या बोला मैंने?
राम प्लस कृष्ण करें या कृष्ण प्लस राम करें, दोनों एक एक ही ही बात बात है, एक ही बात है, ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एडिशन में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3+2 करें, 2+3 करें, बात एक ही है। तो ये हमने उसमें तो पढ़ा था नॉर्मल एडिशन में, नंबर्स वाले एडिशन में। मैट्रिसेस वाले एडिशन में भी यही होता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स में दूसरी ऐड कर रहे हैं या दूसरी में पहली ऐड कर रहे हैं, दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल, लाइक सेम। टॉकिंग अबाउट ये किसी भी मैट्रिक्स से आप वेरीफाई करके देखना। ओके, आई गॉट ए होमवर्क, आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, दैट तुम्हें कम्यूटेटिव अभी और जो हम 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उनके एग्जाम्पल लाने हैं। मतलब आपका मतलब एग्जाम्पल लाना इजी है आई थिंक। तो अब तुम लाना किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को लिखना किसी भी ऑर्डर की, उनको ये मुझे यस प्रूफ करके बताना कि a प्लस बी एंड b प्लस से बराबर है, ठीक है। Talking about the second property of addition of matrices is that associative. They are associative. For example, associative में ये होता है कि A अगर 3 matrices है मेरे पास simultaneously, तो अगर मैं A plus B इस वाले summation को add करूँ C में, या फिर A plus B plus C इस वाले समेशन में ऐड करूं A को, मतलब हमने पहले 2 मैट्रिसेस को ऐड किया, उसमें थर्ड ऐड कर दी, या फिर हमने एक को रखा बाकी दोनों को ऐड करा उसमें ऐड कर दी, ठीक है। ये समझ में आ रही है कंडीशन क्या है? यस दीदी। तो ये दोनों होंगे इक्वल। अगेन यू हैव टू कम अप विद द होमवर्क लाइक दिस। कुछ भी कोई सी भी 3 मैट्रिसेस लेना, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड प्रूव इट कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। आई विल चेक इट टुमारो। एंड थर्ड है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी सबकी यूनिक होती है, जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा नाम अक्षत है, तुम्हारी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तुम एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई हैव अ सेवरल आइडेंटिटी। राम एक इंडिविजुअल है, कृष्ण एक इंडिविजुअल है, सीता एक इंडिविजुअल है, राधा एक इंडिविजुअल है। तो अब क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर में, एक नंबर लो 1, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 1 मिल जाए। क्या दीदी? वन नंबर में, 1 में मैं क्या ऐड करूं, 1 प्लस क्या करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 1+0। 0 करूंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं 0 को कि इट हेल्प इन रिटेनिंग द आइडेंटिटी। मतलब 1 को 1 ही रखना है, तो मुझे उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीजें जो मैं उसमें ऐड करूंगी, 0। किसी भी नंबर में 100 में 0 ऐड कर सकती हूँ मैं, 10,000 में, 1 लाख में, किसी में भी 0 ऐड करूंगी तो मुझे वही के वही नंबर एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी रिटेन करना इसे बोलते हैं। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, अगर मैंने उसमें एक नल मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर अगर मैंने उसमें ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल ये 3:1 की थी, तो मैंने एक 3:1 की नल मैट्रिक्स ऐड कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सेम वही ए मिल जाएगा। ए विद दैट सेम ऑर्डर आई विल गेट। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी इस ए की, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ए में बी ऐड करेंगे तो कुछ डिफरेंट आएगा। ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम बी कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स हैं, तो अगर मैं ए में बी को ऐड करूँ, 1 में 2 को ऐड करूँ, तो मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 1 चेंज हो गया, 2 भी चेंज हो गया, उन दोनों की आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई और हमें एक तीसरी चीज नई चीज मिली। पर अगर मैं 1 में 0 ऐड कर रही हूँ, 2 में 0 ऐड कर रही हूँ, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर रही हूँ, तो मुझे वही के वही नंबर वापस मिल गया। तो आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज दिस, जहाँ पे हमें ये वाली जो मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम किसी नल मैट्रिक्स को या 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, सेम वही चीज। सेम वही चीज मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और एक और इसका भी तुम एक एग्जांपल करके लाना, ये तुम्हें लाने हैं 3 examples। and last property here we can see is inverse। inverse। अब 1 नंबर में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे 0 मिल जाए, -1। करेक्ट। तो सिमिलरली ए मैट्रिक्स जो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे
मतलब इट इज नॉट मैट्रिक्स वाला साइन, इट इज जस्ट क्या ऐड करूं इसमें मैं कि मुझे 0 मिल जाए, एक नल मैट्रिक्स मिल जाए। बताओ। -A। -A, -A m×n का अगर मैं इसमें ऐड करूंगी, ए मैट्रिक्स में अगर मैं -A मैट्रिक्स को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जैसे हमें 1 प्लस -1 से 0 मिलता था नॉर्मल नंबर के केस में, यहाँ पे 0 और ये मैट्रिसेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम यहाँ पे 0 की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ 0 मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर। हम 0 की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ 0 मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जो पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इट इज द इनवर्स। तो इसका भी एक क्वेश्चन, इसका भी एक एग्जांपल करके लाना। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको इनवर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है। हम कुछ भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी का इनवर्स ऐड कर देंगे, ये इनवर्स है इस मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका इनवर्स ऐड कर देंगे, जैसे 1 में अगर हम -1 ऐड कर देंगे तो वील गेट 0। सिमिलरली हैपेंस इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं ये बोल रही थी कि तुम इन 4 प्रॉपर्टीज का यू जस्ट कम अप विद होमवर्क, एक एक इनका एग्जाम्पल करके लाना। ठीक है, और कल मुझे दिखाना कि तुमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है। और टिल हियर, is there any doubt in the types of square matrices or diagonal elements or whatever things we have read, algebra of matrices में addition? Any doubt? नो दीदी। Okay, great. So इस वाले को रिवाइज करके आना. So let me just stop this recording here. So today we have continued where we left tomorrow. So आज हमने पढ़े square matrix क्या होती है, what are the 3 types of square matrices, and after that we have started the algebra of matrices where we have studied addition of matrices. So we will continue in the next class and we'll just come up with some really interesting questions. So we'll meet in the next video. Bye bye. Okay. बाय बाय। थैंक यू दीदी।